Om Shanti. Good afternoon to all dignitaries and guests. With great joy, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for the celebrations of Teachers' Day. आज हमारे बीच में कई स्पेशल गेस्ट्स भी जुड़ेंगे, जिसमें से कुछ मेन गेस्ट्स हैं, जैसे कि श्री कमल जेठवा जी, डॉक्टर ऋषि गोयल जी, मिस संदीपा राय जी, बीके सुदेश दीदी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता और कई अलग अलग इंस्टीट्यूट्स से ऑल ओवर इंडिया से डिग्नेटरीज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं. I would just like to name few institutes जहाँ जहाँ से लोग हमें सुन पा रहे हैं. JK College रोहतक, द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से, Assistant Professors of Cordia Group of Institutes, Sangnol, Punjab se, Associate Professors of Maharaja Aghasen University, Principal and Professors and Lecturers of Ramachandra College of Technology, New Delhi se, हमारे बीच में Principal and whole teaching staff of Rotary Public School भी जुड़ा हुआ है. Then we have other TGT and PGT teaching staff of various schools and colleges, DCG Gurugram, Air Force School Gurugram और QAED पंजाब से. So आप सबका हम फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं. And because it's... and thank you very much, Nitima. It's a pleasure being connected on the virtual platform with all people who are like-minded, ready to brainstorm today and mark the day, Teachers' Day. Thank you. बहुत बहुत स्वागत. और because it's a pious gathering, so why not to begin it with candle lighting. So आप सभी से request रहेगी कि अपना please camera on करेंगे and to be part of this beautiful ceremony that we have lined in for you. So candle ceremony है और हम सभी इस ceremony का बहुत प्रेम से, सद्भावना से इसका पार्ट बनेंगे. ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ. ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ. इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ. और अब चलते हैं इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए. लेट अस रिक्वेस्ट मिस संदीपा राय जी, प्रिंसिपल रोटरी पब्लिक स्कूल गुरुग्राम, to share her thoughts with us and to enlighten us on this beautiful occasion that we are all celebrating here today. A very warm good afternoon to this August gathering of educationists and social influencers. I'm really proud to address the issue and actually celebrate the role of teachers during the pandemic, as the topic states. And I think my slide, and I hope you're all able to see my presentation. You can see I've chosen words like innovative, resourceful, inspired, passionate, grateful, creative, caring, and determined, because I think these are the most important qualities that a teacher has, not just on campus, but also online. And as we move ahead to understand the role of teachers, who are not just facilitators of holistic development, but
teachers who were inspired by the situation of the pandemic and realized that their projector and classroom board teaching had to be re-visualized to make an impact into the lives of those children who've actually been caught in the four walls of their home. And that's why I would like to start by saying, I wasn't born to just teach. I was born to inspire others, to change people, and to never give up, even when faced with challenges that seemed impossible. Who would have ever imagined that teachers who came to a school, a physical school, would be conducting school in classrooms from their homes? So it was this challenge wherein the teachers rose to the occasion and rediscovered themselves, not just their innovative part, but their creative part. Teachers who were not tech savvy had to learn it all, had to create the Google Classrooms, had to create various platforms for learning, and just not be visible. Conduct a class, teach content, be visually impactful, reach out to their socio-emotionally disconnected children who were facing different sorts of issues and hardships during the pandemic. So that's where I would like to begin. And we all know the C's that the teachers are all known for. All this had now to be relayed on a screen to the digital students across their laptops and devices. And it's then that I realized that it was their role to be impactful, to rise to the need of the occasion, to create a new group of collaborators, peer amongst themselves too, to reflect what is going to make a difference and how they are going to make the difference, how they are going to get in practice with what was never known of and never been thought about. And that's where we realize the teacher has evolved from the physical classroom teacher to the virtual classroom teacher. And I would like to begin by stating, apart from all the roles that they've essayed, them being the creators of a new classroom design, wherein they had to shape the look of their classroom, wherein they had to create the classroom every day. They had to be very punctual to do that. And they had to ensure that the curriculum that they were teaching was impactful during that stipulated time of learning, so that what the child learned was really relevant to what the child was going through. So the role of a teacher during the pandemic is definitely of a designer, is definitely of a content creator, as I may say. Moving on to new ideas of pedagogical learning, the best practices, benchmarking with the best tools, being that manager, controlling the entire classroom, the way it started, the way it ended, the way it functioned, the way you had the virtual breakouts, the way you had the breaks to bring them back again, to make them very uniform, so that they felt that they were actually in a classroom, may it be virtual. It was all the responsibility of the teacher alone. And not to forget, the classroom design also meant teaching the children the new net etiquettes of a new digital learner, teaching them what mattered in a classroom and how they could be digitally relevant with these manners in place, and ensuring what background noise was, which they never ever thought of in a normal physical classroom. The way the children had to actually tell everybody in the house that it's my class time, make sure there's no noise. You know, that drama that happened within the four walls was all because the teacher was at the helm of ensuring virtual learning happening efficiently. The teacher moved on to roles as a counselor, because when you realize after taking an attendance
You had many children who had not actually logged in, not just for a day, but then for maybe days. It was the teacher who was reaching out to them personally, asking them what was wrong, if they were unwell, finding about their well-being till they came back to school. If it had been their parents who were unwell or they needed some help, it was the teacher. So from the teacher to the counselor was another journey that the teacher had to make during this time. And they all did that so well. The mentor, the facilitator, as I said, was just about content creation, but ensuring the children are motivated to learn virtually, inspiring them not just to be one-sided learners, but to actually interact, to actually create classroom designs, new tools, share a morning assembly song, make a dance presentation, make a cultural presentation to mark all the days that came along. All these were a part of her work that ensured she also coached them and inspired them. And the hours of the school virtually went on to the hours of the morning and the afternoon and the evening, wherein she was constantly in touch with the child who was trying their best to complete their work or their assignment or their video, because everything then became a virtual platform that did not have to be presented in a book or by a pen, but digitally. She became the tool, the resource tool. She taught children how to log in, log out, mark their attendance, raise their hand, answer the Google form, submit. She was that one step that guided the children through this journey of digital learning. And she did everything from beginning the class to the attendance, to the assembly, to marking the Independence Day or the Mother's Day, everything she did. And she made sure that no stone is unturned in her journey of ensuring her children felt very included in spite of the situation outside their homes. She was this great time manager. She knew things had to start on time to end on time. She had to make sure her content was relevant during that time and the child's attention was on the learning. And for that, she had to plan how she's going to present her work. What she spoke in a normal classroom with her body language and maybe the projector had all become a part of her pressing her buttons one after the other. So she learned to prioritize. She learned to ensure how, even in these times, a child can be an achiever. A child can complete the task. She set deadlines. She ensured that the rigorousness of the academic curriculum and the socio-emotional connect both were together. She herself had to become an e-content researcher, all the time learning, evolving, understanding the best practices, what can be done better, what can better my teaching experience, and what can up the learning experience. So she created new instructional designs. She learned to Zoom, then she graduated to various platforms. Then she learned the tools of Google. Then she learned the tools of Microsoft. She learned to train throughout the time, and the trainings were all after the school hours. And she learned to manage her home and the classroom together. A kudos to all the teachers. She then became this life coach. She kept analyzing performances, feedback of the children, gave them great ideas to evolve, ensuring that she was out for everyone who needed her at any point of time. And thanks to the WhatsApp culture, we had a class group created where not just children were connected, but even parents were connected emotionally, although virtually. She had to be that keen observer to see who was not answering, to see whose camera was not switched on, to see whose work didn't come in on time. She had to be all in one. She had to be that eye of her classroom, right from the morning till the end. She had to keep taking feedback from her subject teachers.
to ensure every child was engaged in the learning process. She had to be that prompter on a stage when a child was presenting or speaking, either in a debate or an elocution or talking about a topic. She needed to help that child to feel comfortable, because the child who was actually in the four walls was actually on a screen. And the child knew that I have to make a virtual visual impact. So she did her best. She ensured that when a child had a difficulty while presenting something, she gave them enough ideas. So she was a complete prompter during this time. And of course, every effective teacher is the controller general of her classroom. She needs to know what's happening across, not just the virtual classroom, but in the homes of the children, in the evaluation of their assignments, in the performance in the examination. And she constantly had to be tabulating online. She had to make reports online. She had to ensure she had a button on the ERP, giving attendance for children. So all the time she was managing her classrooms and administratively all the work that goes behind teaching. And this ensured that she was all the time working and organizing her thoughts and her priorities to be that effective teacher and model of her classroom. And as we say that we have influencers in society, she was that influencer whose style, whose charisma, whose poise, whose confidence, whose compassion actually reached out to each and every child and made this pandemic learning be the best that she could do digitally. And so I'd like to conclude by saying, if you have to put someone on a pedestal, put teachers, because they are society's heroes today. And the world needs more teachers like each one of you who are hearing, whether it was the mother at the home or the teacher in the classroom. It's a big kudos and congratulations and a very warm and happy Teachers' Day that is much deserved to each and every teacher who made the difference. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. It was indeed an insightful experience listening to your talk. Thank you. From here, we would like to go to our sister Akanksha, who's prepared a very beautiful song on this occasion. So I would like to request our sister to for her song. Just to give you a background, Sister Akanksha is a software engineer, and she's currently working, and she also is a very good meditationer. So over to you, Sister Akanksha. शतं शुभं स्वागतम् आपका शिक्षा देवो स्वागत है आपका शतं शुभं स्वागतम् आपका शिक्षा देवो स्वागत है आपका ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है अविनाशी ज्ञान है आपका
दाता गुणगान आपका, अविनाशी ज्ञान है आपका। शिक्षा देवो स्वागत है आपका। नन्ही से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्ही से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो शिक्षक ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है आग हमारे अंदर पर वो ज्योत जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो शिक्षक ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, राह दिखाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्ही से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्ही से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। थैंक यू सो मच सिस्टर आकांक्षा। और अब यहाँ से चलते हैं टू मिस्टर कमल जेठवा जी, who is the head of LI and Air Business, Philips Domestic Appliances for India subcontinent. He was the former vice president and national business head of Radio Mirchi and Ishq FM Entertainment Network Limited, Radio Mirchi, the Times of India Group. It's a great honor to have you here, Mr. Jetwa ji. और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टू शेयर योर थॉट्स ऑन दिस ब्यूटीफुल ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। Thank you, Ritima ji, and thank you, sister. Om Shanti and happy Teachers Day to everyone. Today I'm thankful to Brahmakumaris and giving me a particular platform. I'm just sharing a deck. Just a moment. Just a moment. Give me a second. Is it visible? Yes, it is. Yeah. So
if I'll talk about, so today I'm going to talk about role of teachers in the present scenario. So before getting into what is the present pandemic scenario and how, say, current contemporary teacher is basically facing the challenges, it is not only about being just a teacher, but playing different 7 roles. That is what I have defined. So if we go back to our say school days, okay, I would say that any of our school or college where we would like to take admission, the reputation and the foundation of the particular school or college or any institute, it is completely based on the teacher or the professor who is there, who is very known for that particular teaching methodology. And that is the reason everyone is going to get into that particular institution. So I would like to say, start from the history of Indian education system. So if I talk about India subcontinent starting from 600 BC to 19th century, there are different, education eras that we have seen. So early common era, that is of Gurukuls, where we used to have our world's first Gurukul is like Nalanda, okay. And before that, Takshila was there, okay. So early common era, that was of the Gurukuls era. Then the pre-Mughal and Mughal era, where madrasas have come. There is a teaching methodology by Maulvis through Quran and making students understand about the morals and the spiritual idea about different things or through the religion. Then we have Britishers come on board, and then they have started convent schools, colleges. You find father, and that's how this particular things have moved. Then post-independence, if we'll say that it is largely a technological advancement era. If we'll talk about institutes like AIMS, IITs, IIMs, or IFT, why we would like to get into admission into this particular institutes? Because the doctors of AIMS, okay, professors of IITs, okay, the professors and the management gurus from IIMs, okay, those are those are the people who are basically foundation, creating foundation of this particular technological advancement era of post independence. Then this is the era which has come in March 2020 in India. If I'll talk about, the first COVID case has arrived, and 3 months of lockdown, and then virtual classrooms and e-learning is something which has been started. And that is where the difficulties started. So now, if I talk about who is in this entire journey, starting from 600 BC to till now, even the current present pandemic era, who played pivotal role in the development and learning of any of this? So that is what called guru from ancient times to a contemporary teacher. So there is a transition which has happened, and this is a law or the rule of say nature or any human, where you can see that people will change, the things will change. Similarly, if you look at our guru, ancient times guru to contemporary teacher, their roles are going to get same. So that's the reason I'm going to talk about 7 different roles that ancient times guru used to play, and now even contemporary teacher also playing the seven roles. There are some differentiation. So if I look at the ancient times, teacher methodology or guru methodology, it is basically offered richness in terms of say spiritual tradition, knowledge, and ethics. So it basically brings the overall growth of an individual. However, if you look at the current contemporary education system, or say contemporary way of teaching by current contemporary teacher, that basically build upon the intellectual development of individuals in terms of technological advancements. You can see a lot of say R&D is happening. You find now, like, let's take an example of the COVID-19 vaccine itself.
This time we got the vaccine in just 8 to 10 months post the pandemic. Okay, so that is what the advancement which is we are talking about. Ancient times gurus, if I'll talk about, they have created some of the greatest kings, leaders, and reformers. If you name a few, Chanakya, Vishwamitra, or Valmikis, they have created the greatest of the kings and leaders, starting from Vikramaditya to Ashoka the Great and everyone. However, the contemporary teacher definitely created Indian students, made their names across the globe. If you talk about the IT as a sector, if you go to US, UK, any of the global platform, you find Indian there. You find our major of the say MNCs, their global CEOs are Indians. Okay. And so the things are, so ancient times guru is basically able to provide student a morality, a moral education. So that way there is so much richness which is there at that point of time when the students are developing under their say learning and development. Currently, yes, the contemporary teaching mechanism is definitely able to have a lot of advancement and development, but there are always pros and cons of everything. So we can see that we find a lot of people who are very smart enough, intellectual, but they are not great in terms of so the skill development or the moral development. That is something which we are lacking in terms of current times. So if I'll talk about now the current scenario, so the current scenario, I just would like to ask you guys, all of you, that are we really concerned about mental wellness or emotional well-being of students? Are we really looking at that? And this is not only restricted to the students, it is also say associated with the teachers also, because there's a lot of shift that has happened. There are teachers who are not compatible with using a laptop. They are hardly using, I'm not talking about the metro cities or say top metro markets, okay, where the things are there. If you go to any of the rural school, people are doing now Zoom calls. Okay, there are online classes are happening. Okay, so during all these things, during this particular transition which has happened in last 1 year and 3 months, there are a lot of stress, there is a lot of anxiety, there is a lot of depression, psychological stress, which is there between age to age, children's ranging from 5 to 12. There are many reports which are talking about it. Even household chores is something which is going to create a different kind of a learning environment for if you talk about children. Because learning and development, if you talk to anyone among this particular group or anywhere around you, it's only happens when a kid or me or you or any one of you have been to the school, and that thing, this virtual classes will never ever give out. So the challenge is not only technological advancement or to push or to take yourself as a teacher to next level, okay, but it's largely to keep the wellness, emotional well-being balanced. And that's the reason this is the time where the amalgamation of that ancient times guru and the contemporary teacher has to happen. So then only it has to be a balanced way, and we are able to generate something for the future generation, which is going to make them much more stronger. So here I am talking about the conventionally, or this is something which is a very different kind of the roles that a teacher should play, not only in current scenario, but every scenario, but the transition should happen. So as an educator, what does this mean? If I talk about in classroom teacher, he or she has to prepare about a particular class, and he knows that at one point of time he or she is going to attend some 30 students. So he prepared that particular chapter and solved the doubt within that particular class, maybe 5 minutes before or after that particular class, because all the people are together. Now look at the challenge in current scenario. As an educator, you will have to prepare
at least 2 to 3 hours in advance, because if any of the student is having a doubt, you will have to reach out to them and you have to be approachable. And you, if out of say 30 people, 10 students are having the doubt, you're at least you need to allocate some time there. Now, so that is something where you need to plan it better. So I think Miss Rai is talking about e-content learner. So that is something which is the smart way of. So that is what the transition we need to have. So from an educator to e-content learner is, so e-content learner is the new way of current time of teacher in this scenario. Role model. So in current scenario, yes, you will have to lead by the examples. I understand that teacher has to be a controller, but it's equally important that he should be or she should be very, very well acceptable in terms of following the things and lead from the example. And this is something which is very much possible in current technological scenario, by breaking the ice, by engaging with the students, talking their language. And that's how making them comfortable and making little bit of excitement while they are coming on the virtual classroom. Third, which is mother. Now, these are the roles which we have seen in the old school gurus, educator, role model, mother also, because mother and big brother, I just would like to talk about this, both the roles together, because mother, the teacher as a mother, this particular role is very much in person. So suppose if a teacher is say got upset with something that has been done by a student, one of the favorite student of his class, and in that case, the reaction, if the student is there in front of you in the within the classroom, and you can easily see the emotions in the eyes, you can just go and give a pat on back or just give a hug, and that's how that thing gets over. But in virtual, this is something which is a big challenge for them. And these are the things that is basically creating that emotional well-being imbalance. These are the things which basically creates the gap of getting this kind of the emotional or say kind of things from the teacher and student relationship. Similarly, big brother, which is a role where like a big brother, if you do something wrong, you get a slap on the face also, and probably if you did really something good, then you get a pat on the back. And if somebody would be there to bully you, then you are there as a protector with that particular time. So these are the things which is something which has been missed, and these are the real life learnings that we have learned when we used to go to the school, because that's how from school to college everyone grows. And that is something which is these are the conventional way of gurus too. Now the next three roles I'm talking about are the critical role, most critical role in current scenario. So first is the counselor, and this is something I believe that one of the crucial role that in current times teachers should play. And I would really like to urge all the institutions to provide more time for allocation of engagement and the interaction between teachers and students, rather than spending many other things on say administrative work or preparing for some presentations or other stuff. Because counselor is a role which is going to define the future of current generation, because at the age of say 6, 7, 8 or 10 years, a kid is facing a lot of emotional imbalance, and that is something which we have never ever experienced. Okay, so this is one of the very critical role, and the good part is the technology is going to give you a lot of things over there. Then entertainer, again, entertainer is also very much possible. Use the lingo and interact with the students on in their own language that they understand. Talk about the say BTS or the Fortnite, and do the ice break, and at least make them
understand about the social media and all the stuff. And third is seventh is the champion. So be the jack of the all. That is something uh, which is the requirement of the current times. You need not to be expert. So if you are a banking professional, if somebody in future, if I'll talk about banking operations along with HR, that is what people are looking at. If you are an IT guy, then what are the things that you can do in terms of automobile? So anything which is on the mechatronics or something kind of thing. So these are the things. Then the current current time students are basically looking at multitasking and the multi-approach things. So that is where the champion role is come. So now the big question is that how these 7 different roles to be successfully played by a teacher. So first step is pedagogical adaptations. And I think Mrs. Rai has also talked about the same thing. And this is very much needed because of in-person to remote learning. That's a big transition. And then it's having its own constraint. It's having its own benefits. It's having its own challenges. And that's the reason learning is happening outside learning environment. That's the second point. Both the things are creating the emotional imbalance among the students and even the teachers. So just want to share some examples, which, like, say, in Sierra Leone country, it's a very small country in the near Cuba. So they have started a remote learning live radio sessions because due to household chores, because if the kid is there at home, both the husband and wife are working and household chores needs to be done, and parallelly you need to attend the class with full discipline. So there's a lot of stress which is there in a 10-year-old kid also. So it's a live radio channel. You just call there and learn how to help your parents on say preparing and sharing their workload on the household. So these are the things which has been initiated maybe by the education institutes where the teachers are already there, and these are the things which can be done. Community radio has already been running by major of the institutes. So this is how the things are. The second very important point is recalibration of the time by offering flexibility to teachers. So over here, there are 3 things that I believe that in current times, the teachers are spending their main time. First is student-teacher interactions, then teaching time for the students during the classes sessions. And the third is on the administrative task. Now the sequence has to be in this way. The top priority should be on the student and teacher interactions. That's where the education institute and teachers, and even I'm talking about parents' role, will also come, where they need to understand and the importance of the time that has been given to by the teacher to come on a particular call and to solve the queries and all. Then emphasize on the teaching time of the students and then the administrative task. What we'll achieve if we really able to implement all these things? We definitely create human connection and interaction again, and that will help the holistic development of the new generation. And then we'll have the future generation, which is not only limited to develop with a limited development of the technological and digital expertise, but also with moral and spiritual development. So that's it. I would like to end my session with a quote from Paulo Freire. Whoever teaches learns in the act of teaching. Whoever learns teaches in the act of learning. जो शिक्षा देता है वो उसमें भी सीखता है और जो शिक्षा लेता है वो उसमें भी सीखता है. That's it. Om Shanti. Happy Teachers Day to all. Thank you so much, Kamalji, for sharing your views on changing scenario of education. We find it interesting listening to your views, and hopefully we'll get to hear them again sometime soon. Thank you. So, and now may I request Dr. Rishi Goyalji to join us on this platform. He is the director of SCERT Gurugram, Haryana. Or he has a doctorate in educational management and management study, master degrees in management and English literature. आपने करीबन 30 साल
स्कूल लीडरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्कूल एजुकेटर्स की फील्ड में कार्य किया है. And he was also awarded by President of India as Best Educator in 2013. आप काफी ट्रैवल करते आए हैं and you've contributed in many seminars and conferences on of education. He has also been member of governing body of National Council for Teachers Education and Northern Region Committee of NCTE. As a social activist, Dr. Goyal is Haryana State Coordinator of a forum of intellectuals named as Panchad Research Institute. So now over to you, sir, for your thoughts on this occasion. जी नमस्कार. सभी जो विद्वज्जन और सभी मित्र जो इस माध्यम से जुड़े हैं, उनसे प्रत्यक्ष यद्यपि किसी से भी मिलना नहीं हुआ, लेकिन अभी के जो दो पूर्व वक्ताओं को सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं अपना प्रणाम, अपना आदर सभी के प्रति व्यक्त करता हूं और सभी को और शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं. और मैडम संदीपा राय जी ने जो अपनी प्रस्तुति की वो बहुत ही सुंदर इस सेंस में थी और जिसको सुनकर के ऐसा लगा कि यह 2020 का जो वर्ष है ये एक बड़ा मील का पत्थर सारी शिक्षा की यात्रा में और सिद्ध होने वाला है. यानी एक तो इसलिए कि जैसा संदीपा जी ने बताया कि शिक्षकों ने स्वयं को एक नए अवतार में अपने आप को इसमें प्रस्तुत किया है. कितने सारे नए कौशलों को उन्होंने सीखा, कितनी सारी नई और योग्यताएं अर्जित की और जो टेक्सावी नहीं थे वो उन्होंने अब जो है वो योग्यता अर्जित की. और सबसे बड़ी बात जो उनकी प्रस्तुति से ध्यान में आई, कभी कभी टेक्नोलॉजी को लेकर के एक बात ये कही जाती रही है कि शायद टेक्नोलॉजी का जैसा जैसा हमारे जीवन में प्रवेश होगा तो शिक्षक की आवश्यकता और शिक्षा का रेलेवेंस थोड़ा कम हो सकता है. समाप्त नहीं तो थोड़ा कम हो सकता है. कहीं भी बैठा हुआ शिक्षक कहीं भी पढ़ा सकता है और एक साथ एक शिक्षक हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है यदि, तो फिर 40-50 पर एक शिक्षक रखने की जो आवश्यकता नहीं है. ऐसी भी कुछ बातें और कभी कभी की जाती रही हैं. लेकिन उनकी प्रस्तुति से ये ध्यान में आया कि शिक्षक इस नए अवतार में भी उसकी जो भूमिका है विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट करने की वो उतनी ही महत्वपूर्ण है. और टेक्नोलॉजी चाहे किसी भी स्तर पर और भी आगे प्रगति करेगी, लेकिन शिक्षक की भूमिका जो पहले रही है वह उसी प्रकार से उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं बनेगी. एक तो इस कारण से 2020 का वर्ष मुझे लगता है इसलिए याद किया जाएगा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था प्री 2020 एंड पोस्ट 2020 एक ऐसा ये क्रांतिकारी बदलाव है. दूसरा इस कारण से भी कि वर्ष 2020 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और जहां बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन मेरा ध्यान जिस बात पर सर्वाधिक गया वह शिक्षक की गरिमा को, शिक्षक के स्थान को, शिक्षक की भूमिका को फिर से एक नए सिरे से परिभाषित करने का और उस स्थान को फिर से, तो बहुत सारे उसमें जो उपबंध किए गए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और बहुत सारा एक जो फ्रेमवर्क बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो पहला हिस्सा उसका इस बात में है कि कैसे देश के सर्वश्रेष्ठ जो छात्र हैं वे शिक्षक बनने की ओर आकर्षित हों. ये बहुत बड़ी बात है. अन्यथा शिक्षक बनना ये एक लास्ट ऑप्शन का विषय रहा है, हम सब जानते हैं. लेकिन उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं कि बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में कैसे टीचर ट्रेनिंग डिग्रीज ऑफर की जाएं और उसमें भी बेस्ट स्टूडेंट्स को कैसे लाया जाए, कैसे उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, इस प्रकार का प्रावधान और उसमें रखा गया है. फिर जो लोग शिक्षक बनने की कतार में खड़े हैं तो शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से बेहतर बने, इस बात का उसमें ध्यान किया गया है. उसमें भी बहुत सारे मौलिक बदलावों की सिफारिश की गई है ताकि अच्छे लोग जो हृदय से शिक्षक हैं और जिनके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड मौजूद है वे ही लोग शिक्षक के प्रोफेशन में आ पाए. इसकी भी एक अच्छी व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है. और तीसरी बात कि जब वंस टीचर गेट्स इनटू द प्रोफेशन तो उसकी जो सेवा शर्तें हैं, उसका कैरियर प्रोग्रेशन है, उसके इंसेंटिव के इश्यूज हैं, रिवार्ड सिस्टम के इश्यूज हैं, उनको भी एक प्रॉम्प्टनेस के साथ और जो उसका ड्यू शेयर है और उसको जो है संबोधित किया जाए, उसको जो है उन चीजों को हल किया जाए.
और सबसे बड़ी जो अंतिम बात है कि अभी तक जो भारत की शिक्षा व्यवस्था और गैर शिक्षकीय लोगों के हाथ में जकड़ी हुई है, तो शिक्षा को उस दास्ता से मुक्त करके शिक्षा का प्रबंधन और शिक्षा का संचालन वह शिक्षकों के हाथ में कैसे सौंपा जाए, तो कैसे एक शैक्षिक नेतृत्व तैयार हो, इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिफारिशें की गई हैं। तो इन दोनों बातों को अगर मिला दें, वर्ष 2020 में हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और वर्ष 2020 में ही एक ऐसी वैश्विक आपदा का सामना हमको करना पड़ा जिससे शिक्षकों को अपनी संपूर्ण भूमिका पर और एक जिसको कहना चाहिए कि पूरा पूरा जिसको पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ी। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। रही बात जो ये भविष्य के शिक्षक की जो तैयारी की बात है, हम इस बात के लिए एक अपने आप को सहज रूप से गौरव कर सकते हैं कि हमारे देश में भी और ऐसे श्रेष्ठ लोगों की एक परंपरा में बहुत पुरानी बात, जैसे आदरणीय जेठवा जी नालंदा की बात कर रहे थे, गुरुकुल व्यवस्था की बात कर रहे थे। अभी हाल में भी हमारे पास ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जो हमें बहुत प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति होने से अधिक उनको शिक्षक होना और पसंद था। और जो हमारे जो डॉक्टर राधाकृष्णन जो द्वितीय जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर तो हम शिक्षक दिवस मनाते ही। हम जानते हैं कि कैसे शिक्षक होना उनके हृदय के कितना निकट था। हमारे सामने लोकमान्य तिलक जैसे हमारी स्वाधीनता आंदोलन के ऐसे नायक उपस्थित हैं और पुणे में बहुत लीडिंग एडवोकेट थे, बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थे। जब लेकिन मन से लगा के शिक्षा में आने की आवश्यकता है और एक नया राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, तो 60 रुपए में इतनी रोरिंग प्रैक्टिस को छोड़ करके 60 रुपए महीने की और वो नौकरी में आकर के शिक्षक बन गए। किसी ने कहा कि इस पर तो आपको जो है और जिसको कहना चाहिए कि और जब आप मरेंगे तो मतलब आपका अंतिम संस्कार करने लायक भी आपके पास जो है मतलब ऐसे कुछ लोगों ने मजाक किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जो म्युनिसिपल कमेटी जो है मेरा अंतिम संस्कार कर देगी, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लोगों की कितने ही जिसको कहना चाहिए कि व्यंग्य उन्होंने सहे, लेकिन उन्होंने एक शिक्षक बनना स्वीकार किया। इस प्रकार के रोल मॉडल हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी इसी प्रकार जालंधर में वो रहते थे और बड़ी उनकी ऐसी प्रैक्टिस थी, लेकिन जब उनको लगा स्वामी दयानंद की प्रेरणा से कि और शिक्षा क्षेत्र में आने की आवश्यकता है, तो सब कुछ छोड़ करके, सारी प्रैक्टिस को छोड़ करके और हरिद्वार के निकट एक छोटे से गांव में जाकर के एक छोटा सा विद्यालय, आज वो बेशक बड़ा विश्वविद्यालय बन गया होगा, लेकिन पूरा जीवन उन्होंने साधना में लगा दिया, शिक्षकत्व की साधना में, एक शिक्षक होने की साधना में। तो ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जो हमको मार्गदर्शित करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षक दिवस के अवसर पर और ये सारे उदाहरण हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि हमें किस प्रकार, कौन से रास्ते पर शिक्षकों, भविष्य के जो शिक्षक हैं उनके सामने मार्ग कौन सा है। कभी कभी एक बात और लगती है मुझे, ये जो शिक्षक दिवस का अवसर है, यह जन्माष्टमी के बिल्कुल अभी भी, और 30 तारीख को जन्माष्टमी हमने मनाई, ये भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस दोनों प्रसंगों बिल्कुल एकदम 5-7 के अंतर पर, और पिछले 2 साल पहले तो एक ही दिन संयोग से कृष्ण जन्माष्टमी भी उसी दिन थी और शिक्षक दिवस भी उसी दिन पड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण को हम भगवान के रूप में, अवतार के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में और नाना रूपों में देखते होंगे, एक दार्शनिक के रूप में देखते होंगे, लेकिन मुझे उनका शिक्षक का रूप और वो दिखाई देता है। ये कमल जेठवा जी अभी बता रहे थे कि भाई 7 रोल्स हैं टीचर के, और संदीपा जी ने भी बात की कि टीचर को रोल मॉडल भी होना पड़ता है, उसको काउंसलर भी होना पड़ता है, उसको कंट्रोलर जनरल भी होना पड़ता है, उसको मेंटर भी होना पड़ता है, उसको बिग ब्रदर भी, जैसा कमल जेठवा जी कह रहे थे, बिग ब्रदर भी होना, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं और वह शिक्षक को समय समय पर निभानी होती है। अगर हम एक बार भगवान कृष्ण के जीवन पर विचार करें, और विशेष रूप से ये ब्रह्म कुमारी जो संगठन है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यह प्लेटफॉर्म तो निश्चित तौर पर बना ही इस बात के लिए है कि शिक्षक का कार्य केवल मात्र कुछ विषय पढ़ाने देना नहीं, तो एक जीवन दृष्टि का संचार करना, वो जीवन के बारे में विचार करने वाला व्यक्ति, जीवन के बारे में एक सोच विकसित करने वाला व्यक्ति, वो शिक्षक के माध्यम से खड़ा होना चाहिए। तो आज जब हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब 700 श्लोकों में गीता अर्जुन को समझाते हैं, तो केवल मात्र वो इस उद्देश्य के लिए काम करते हैं क्या अर्जुन जो है और तीर चला करके सारी कौरवों की सेना को परास्त कर दे?
उसको तैयार करते करते, उस बात के लिए तैयार करते करते हम जानते हैं कि वो सारी शरीर की चाहे नश्वरता है, चाहे आत्मा की अमरता है, चाहे वो सृष्टि चक्र है, चाहे वो यज्ञ का विधान है, और चाहे वो ये इस जगत की उत्पत्ति है, और चाहे वो मानव के मन की बात है, चाहे मानव के मन की संतुलन की बात है, इक्विलिब्रियम की बात है, साम्य स्थिति की बात है, जितनी भी प्रकार की बातें हो सकती हैं मनोवैज्ञानिक, उन सब बातों को वे कृष्ण को अर्जुन को समझाते हुए नजर आते हैं। तो यह जो कार्य है शिक्षक का, एक जीवन दृष्टि देने वाला, एक आध्यात्मिक दृष्टि देने वाला, उसको वो करते हुए नजर आते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी शिक्षण कार्य जो है वह तभी ज्यादा सफल होता है जब और उपयुक्त उदाहरण आसपास के परिवेश के साथ जोड़ करके शिक्षक अपनी बात को कहता है, तो वह अधिक प्रभावकारी होती है। यदि पूरी गीता में हम कृष्ण और अर्जुन के संवाद को देखें तो हर बात को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण जो है उदाहरण देते हैं। और मुझे तो इसे देख करके लगता है कि हमें शिक्षकत्व के आदर्श के लिए कृष्ण से बढ़कर के और व्यक्तित्व कौन सा हो सकता है। अभी जब विभिन्न रोल्स की बात हो रही थी तो एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग उन्होंने, कमल जेठवा जी ने कहा कि बिग ब्रदर, कभी कभी थोड़ा सा आपको प्यार भी करना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा डांटना फटकारना भी पड़ता है, अलग अलग समय पर अलग अलग पद्धतियां अपनानी पड़ती हैं, मल्टीपल टेक्निक से टीचर को यूज करनी आनी चाहिए। हम देखते हैं कृष्ण जो है अर्जुन के साथ पूर्व जन्म का संबंध भी बताते हैं, उसके साथ एक अभिन्नता का रिश्ता भी बताते हैं, कोई उससे कितना प्रेम करते हैं, उसके हृदय के उनके हृदय के कितना निकट है ये भी जताते हैं। और जब कही हुई बात को अर्जुन नहीं समझ पाता है तो थोड़ा ताना भी कसते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम, तेरे अंदर जो है ये है, और कहां से आ गया ये जो है कश्मल कहां से उपस्थित हुआ, और ये जो क्लैव्य क्लैव्य किसको कहते हैं, इस प्रकार का जो इसको कहना चाहिए कि ये नपुंसकता, क्लैव्यम मा समगम पार्थ नहीं तत्व क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्व उत्तिष्ठ परंतप है। यानी तेरे अंदर ये नपुंसकता, नपुंसकता जैसे शब्द का भी प्रयोग यदि शिक्षक को करना पड़ा किसी बात को समझाने के लिए, मैं उस प्रसंग में नहीं जा रहा, मैं केवल इस बात को आपके ध्यान कराना चाहता हूं कि एक शिक्षक को समय समय पर विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा करनी होती हैं। वो कृष्ण हमको करते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी दिखाई देता है कि एक तरीके से बात कहने पर समझ नहीं आती है तो टीचर्स को कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, और कोई नई किताब भी पढ़ने के लिए देनी पड़ती है, कुछ नए नोट्स भी देने पड़ते हैं कभी कभी, और लैब में ले जाकर के भी समझाना पड़ता है, कभी कभी फील्ड में ले जाकर के भी समझाना पड़ता है। हम देखते हैं कि इतनी बहुत सारी बातों को बताने के बाद भी जब अर्जुन की शंकाएं समाप्त नहीं हो रही थी तो कृष्ण कहते हैं दिव्यम ददामी चक्षु पश्चिम मई योगम ऐश्वर्यम, आपको ऐसी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, ये चक्षु, इस दिव्य चक्षु से तुम्हें जो है और वास्तविकता दिखाई देने लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे सामने और शिक्षक का एक आचरण वो प्रकट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबने अभी जो उन्होंने भी कहा, हमारी जो पूर्व की दोनों वक्ता हैं संदीपा राय जी और कमल जेठवा जी ने, सबसे जो टीचिंग है वो तो आचरण के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है, रोल मॉडल के रूप में, यानी भाषण से, कहने से, सुनने से, बोलने से, और जो बातें समझ में नहीं आती हैं, बहुत सारी बातें तो उसका विषय भी नहीं है, बहुत सारी बातें तो सिखाई ही और आचरण के द्वारा, लीडिंग बाय एग्जाम्पल जैसा उन्होंने कहा, यही बात कृष्ण हमको कहते दिखाई देते हैं। यदि यद आचरते श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, यानी एक अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग जिनको हम अपने लिए महनीय मानते हैं, वे जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा वैसा समाज के सब लोग जो है करते दिखाई देते हैं। दोनों बातें हमारे संदीपा जी ने भी कहा और बाद में कमल जेठवा ने कि टीचर की एक बड़ी भूमिका काउंसलर की है। और जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के नाते से काउंसलर्स की ट्रेनिंग सेशंस में एक बात बताते हैं कि काउंसलर का एक सबसे बड़ा गुण क्या है। काउंसलर का सबसे बड़ा गुण ये है कि वह विभिन्न प्रकार के विकल्प और सामने रखता है। जिस आदमी की काउंसलिंग हमने करनी है उसके सामने विभिन्न प्रकार के विकल्प रखे जाते हैं और उनके गुण दोषों का विवेचन किया जाता है, लेकिन अंततोगत्वा उन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना यह उसके ऊपर ही छोड़ा जाता है। यदि कोई काउंसलर अपनी बात को एक सीमा से अधिक जोर दे करके कहता है तो उसको अच्छा काउंसलर नहीं माना जाता। हम कृष्ण के संबंध में क्या देखते हैं, सारी बातों को समझाने के बाद अंत में वो एक सेंटेंस बोलते हैं, क्या कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्य तरम मया,
विमृविश्च एतद् अशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु। मैंने जो कुछ भी बातें हो सकती थी इससे रिलेटेड, ये सब आपके सामने आद्योपांत रख दी है। शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी कहा जा सकता था वे सब बातें कर दी। विमृश्च एतद् अशेषेण, अब तू इस सारी बात के ऊपर विचार कर, एंड देन यदेच्छसि तथा कुरु, डू एज यू विश, जैसा आप चाहें वैसा करें। मैं समझता हूँ कि एक काउंसलर के लिए इससे बड़ा, चाहे हम माता पिता के रूप में, चाहे शिक्षक के रूप में, और विद्यार्थियों के सामने जब काउंसलर की भूमिका में होते हैं, तो कई बार हम ये विस्मरण करते हैं कि हमें स्थिति का विवेचन रखना है, सारे विकल्प रखना है, लेकिन अंतिम निर्णय यह उसका ही होना चाहिए, चाहे वो छोटा बालक ही क्यों ना हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक शिक्षक की भूमिका में उसको एक, जिसको कहना चाहिए कि एक मेंटर के नाते से आप जिसमें कन्फाइड कर सके, कभी कभी एश्योरेंस भी देने की आवश्यकता होती है। आदमी इस प्रकार की मेंटल स्टेट में होता है कि वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो शिक्षक को भी कई बार ये भूमिका, माता पिता की भूमिका तो है ही है, लेकिन शिक्षक से भी अपेक्षित है कि कभी कभी ये कहने की आवश्यकता कि मैं हूं ना, डोंट वरी आई एम देयर, ये कहने की जो बात है, तो हमें कृष्ण के, भगवान कृष्ण के वाक्यों में दिखाई देता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते दिखाई देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब बातों को भूल करके आप मेरी शरण में आ जाइए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर और जन्माष्टमी के बिल्कुल नजदीक होते हुए, हमें जब एक शिक्षक की भूमिका को फिर से जो है विचार करना है, और आने वाले शिक्षक किस प्रकार के हों, इस बात का विचार पूरे समाज को करना है, और विशेष रूप से शिक्षक समुदाय को करना है। मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, ब्रह्म कुमारी संगठन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षक दिवस पर, और मैं देख रहा था जो लिस्ट में लोग जुड़े हुए थे उनमें से बहुत सारे और शिक्षक हैं, ऐसा एक लिस्ट को पढ़ करके थोड़ा सा मुझे आभास हुआ। तो इतने सारे शिक्षकों को जोड़ करके और इस विषय पर विचार विमर्श करने को प्राथमिकता दी, और मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबसे मिल सकूं। यद्यपि यह प्रत्यक्ष मिलना नहीं है, इससे मिलने की अपनी एक सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी ये अवसर आपने मुझे दिया, मैं इसके प्रति, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा लगा शिक्षकों के बारे में आपके विचार सुनकर। शिक्षकों की गरिमा के बारे में आपकी सोच तो बहुत ही सराहनीय है गोयल जी। उम्मीद करते हैं आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे और आपको दोबारा सुनने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा। और यहाँ से चलते हैं हम टॉक एंड मेडिटेशन के लिए हमारी सिस्टर बीके सुदेश जी के पास, जो पालम विहार गुरुग्राम से हमारे बीच में जुड़ रही हैं। She is the National Promotional Coordinator of Value Education and Spirituality. और यदि कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो वो हम उनके सेशन के बाद लेंगे। We would also like to play a small video for you right now. Mr. Sudesh is director of Brahmakumaris Raj Yoga Center, Palam Vihar, Gurgaon. She is also the National Promotional Coordinator of Value Education and Spirituality, Associate Coordinator of Educational Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Delhi Zone. She is the Regional Coordinator of Thought Lab, established at North Cap University, Gurgaon. She has been a lecturer of home science and is a qualified MSc, MA, B.Ed and a diploma holder in value education and spirituality. With her keen desire to inspire others, Sister Sudesh has delivered hundreds of sessions on spirituality. She has also traveled to several countries like Japan, Hong Kong, Dubai, Nairobi, and Russia with a wish to share her experiences of value education with students and educators. Some of her accolades include Corporeal Zonal Award for Best Teacher in 1991, Radhakrishnan National Award for Best Teacher in 2001, and State Best Teacher Award in 2002. Thank you.
इवनिंग, ओम शांति। आज ऑनलाइन मंच पर विराजमान विद्वान परम शिक्षक के, परम सुप्रीम टीचर के शिक्षक आदरणीय भ्राता ऋषि गोयल जी, कमल जेठवा जी एंड सिस्टर संदीपा राय जी, और साथ साथ डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज से पधारे प्रोफेसर्स, आज आप सभी को इस मंच पर देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और साथ साथ मुझे ये प्रेरणा भी अंदर से आ रही है कि आज के इस वेबिनार से हमारे अंदर जरूर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ऐसे ही हम इस वेबिनार को सुन करके नहीं जाएंगे, तो हम अपने अंतःकरण में झांकें कि हमारे अंदर कहाँ पर क्या फॉल्ट है, तो उसको हम आज परिवर्तन करेंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ये सिनेरियो चैलेंजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन सिचुएशंस को हम स्टेबल रह करके हैंडल करें या इन सिचुएशंस को हम डिस्टर्ब होकर, परेशान होकर के हैंडल करें, ये हमारी चॉइस है। तो मैं समझती हूँ 95% जो टीचर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का यही आंसर होगा कि हम स्टेबल रह करके ही करना चाहते हैं। ऐसा है ना? क्या कहेंगे? सभी का यही रिस्पॉन्ड है कि हम स्टेबल रह करके ही करना चाहते हैं, लेकिन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम यही बातों को लेंगे कि हमारे अंदर कोई भी जब सिचुएशन आती है तो उसको हम कैसे देखें, उससे हम डिटैच पर्सपेक्टिव रख करके उसको देखें, उसमें फंसे नहीं। डिटैच पर्सपेक्टिव मीन्स जैसे आपके रोड पर कोई जा रहा है और वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी कार चला रहा है, लेकिन आप साइलेंटली दूसरी जगह से साइलेंटली निकल जाते हैं, ज्यादा उसके साथ माथापच्ची नहीं करते हैं, तो इसमें आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं जाता है। आपको पता है कि ये कहने से मानेगा नहीं, तो इसे कहते हैं डिटैच पर्सपेक्टिव। तो इसी प्रकार से हम अपने एजुकेशनल फील्ड में भी देखते हैं, टीचर्स के सामने काफी समस्याएं आती हैं और स्टूडेंट्स मिसबिहेव भी करते हैं और कई तरह की बातें उनके सामने आती हैं। तो उसमें 3 स्टेप आप याद रखें। पहले तो आप सिचुएशन को पहचानें, सेकंड स्टेप उसका पॉजिटिव साइड आप अपने माइंड में लेकर आए, और थर्ड आप उसकी प्रैक्टिस कुछ दिनों तक करें। जो पॉजिटिविटी आपने सोची है उस नेगेटिव मिसबिहेव करने वाली सिचुएशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को आप देखिए कई बार टीचर्स के लिए भी कुछ बोल देते हैं, उनके साथ ऐसा ही बिहेवियर उनका कई बार रहता है और टीचर के पास में पूरी अथॉरिटी है, टीचर भी अपनी अथॉरिटी का पूरा प्रयोग करना जानती है। तो अब वो क्या करती है कि अब इसको जो ग्रेड दूंगी ना, देखना लोअर ग्रेड दूंगी। ये है नेगेटिव अप्रोच। लेकिन इस समय मुझको पॉजिटिव साइड देखनी है कि बच्चे का बिहेवियर ऐसा क्यों है, उसकी क्या वजह है, इसको मैं अपना बच्चा समझ करके सुधारूं। ये पॉजिटिव अप्रोच हो जाती है। जब हम ऐसा समझते हैं तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाती है और वो हमारे करीब आने लगता है। इस प्रकार के बिहेवियर को हम हफ्ते तक, 15 दिन तक करें, जब तक हमारे अंदर ये चेंजेस नहीं आ जाए, मेरा ये मानना है। तो मैं समझती हूँ आप सभी इस बात पर गौर करेंगे और इस बात पर प्रैक्टिस भी करेंगे। दूसरा, हम शिक्षकों को अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाना है। आप सभी ने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन, जिनके लिए
उनकी शिक्षक ने नोट दे दिया था पेपर पर लिख करके कि अपनी मम्मा को देना, उसको बंद करके पैकेट में दे दिया था, उसको खोलना अलाउ नहीं होता बच्चों को। तो घर में जाकर के थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी मदर को वो दिया और मम्मा ने खोल करके उसे पढ़ा और पढ़ करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चे ने पूछा कि मम्मा इसमें क्या लिखा है? तो एडिसन की मदर ने बोला कि बच्चे इसमें लिखा है आपके टीचर ने कि हमारा स्कूल इतना हाई ग्रेड का नहीं है, टीचर्स भी इतने वेल ट्रेन्ड नहीं है, आपका बच्चा बहुत जीनियस है, इसको आप घर में ही पढ़ाइएगा। तो बड़े अच्छे खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन मदर को मालूम था कि उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि वो बचपन से ही सनकी थे और थोड़ा डिस्टर्ब माइंड थे। एक बार वो देख रहे थे कुछ जो चिड़िया है वो कीड़ों को खा रही हैं, तो उन्होंने देखा कि शायद कीड़े खाने से उड़ते हैं। उन्होंने बहुत सारे कीड़े जो हैं जार के अंदर इकट्ठे कर लिए और अपने एक पानी के अंदर घोल बना दिया और वह घोल जो उन्होंने अपने फ्रेंड को पिला दिया कि मैं देखता हूं अब मेरा फ्रेंड उड़ता है या नहीं। तो बचपन में इस प्रकार की वो हरकतें किया करते थे और स्कूल में भी टीचर की बात को नहीं सुनते थे। तो अल्टीमेट यही स्थिति आई कि उनको स्कूल से निकालना पड़ा। तो बात क्या हुई कि बाद में 9 इयर्स में उनको एक बुक दी थी प्रायोगिक, प्राइमरी प्रायोगिक उसकी। तो उसमें जो है उसने काफी एडिसन ने अंडरस्टैंड किया उसको और पढ़ा और घर में ही लैब बना ली और लैब बना करके उन्होंने इतनी आज इन्वेंशंस की हैं जो आज आप देखते हैं कि आपके सामने जो अपना बल्ब है, स्टीम इंजन है, ग्रामोफोन है, थाउजेंड्स इन्वेंशंस उन्होंने की है। तो आप समझ गए होंगे कि टीचर ने वहां पर एडिसन को सही नहीं परखा, माँ ने उसको पॉजिटिव एनर्जी दी और उसको साइंटिस्ट बना दिया। अगर माँ भी उस दिन वहां यह कह देती कि तू तो बुद्धू है, पागल है, तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो आज वो बच्चा जो है ये नहीं बन पाता। तो आप देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी की पावर कि किस प्रकार से पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने से एक नालायक स्टूडेंट भी होशियार बन सकता है। ऐसे अनेकानेक एग्जाम्पल्स हैं। अभी समय की सीमा को देखते हुए उन सभी को मैं आपके सामने नहीं रख सकूंगी। तो आगे हम और चलते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरों के प्रति एक दृष्टिकोण को अच्छा रखें। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पेपर में, इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप क्या देख रहे हैं? कोई भी बताए, कोई भी पार्टिसिपेंट्स बताएं, ये आप क्या देख रहे हैं? बताएं। गोपाल कृष्ण जी क्या देख रहे हैं? इसमें आप क्या देख रहे हैं? व्हाइट पेपर। ऋषि गोयल, हाँ जी, ऋषि गोयल भाई जी आप क्या देख रहे हैं? ब्लैक स्पॉट। हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा रिप्लाई दिया अपने तरीके से। लेकिन इसके माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आज हम विद्यार्थी के अंदर जो कमी है उसको देखते हैं। जैसे हमने व्हाइट पेपर पर ब्लैक स्पॉट छोटा सा है उसको देखा, लेकिन जो व्हाइट एरिया है उसको हमने नहीं देखा। तो बच्चे के अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं, यदि हम उन विशेषताओं को देखते हैं तो बच्चे को पॉजिटिव प्रेम की एनर्जी हम देते हैं और उसको एक एजुकेशनल एटमॉस्फेयर मिलता है और वो टीचर के करीब आता है। तो हमको जो सुप्रीम टीचर भगवान है जिसका वर्णन ऋषि गोयल भाई जी कर रहे थे,
मुझे इस बात को यहाँ बताने की जरूरत पड़ रही है कि उनके मन में ये इच्छा थी, जो उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को याद किया। हमारे यहाँ जो आप परमात्मा का जो साइन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये इधर देख रहे हैं पॉइंट ऑफ लाइट, ये पॉइंट ऑफ लाइट जो निराकार शिव है, जो आप शालिग्राम के रूप में देखते हैं और बीच में शिवलिंग रखा हुआ देखते हैं, तो वही निराकार भगवान आकर के इस समय सुप्रीम टीचर बनते हैं, जिसका गीता के अंदर वर्णन है, मैं पिताओं का परम पिता हूँ, शिक्षकों का परम शिक्षक हूँ। तो ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यही परम शिक्षक आज हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। और श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है, जो परम शिक्षक से पढ़ करके नंबर 1 स्टूडेंट कहें या प्रिंस कहें, वो बना है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनुष्य से देवता अर्थात डिवाइन क्वालिटीज वाला एक ह्यूमन बीइंग बना जाता है, और वो बन करके एक देवता का रूप लेते हैं। और वही लॉर्ड कृष्णा अब कलयुग के डिस्ट्रक्शन के बाद इस सृष्टि पर शीघ्र ही आने वाले हैं। तो ये मैसेज जो है मुझे यहाँ इसलिए देना पड़ा क्योंकि बीच में ये प्रश्न उठा था। तो अब हम और आगे चलते हैं कि हम टीचर्स को प्रेजेंट सिनेरियो में क्या करना है, क्या रोल हमारा होना चाहिए। हमारा रोल एक रोल मॉडल का होना चाहिए, हम एक आदर्श टीचर का रोल प्ले करें। हम अक्सर करके सुनते हैं, कई टीचर्स कहते हैं कि बच्चों को आप जो हम करते हैं ना उसको नहीं देखो, जो हम कहते हैं वो आप करो। कथनी और करनी में बहुत अंतर रखते हैं। किसी टीचर के घर के पास रहता है और वो देखता है कि टीचर हमको कहते हैं रोज मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, और मेरे सर तो कभी मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं। तो बच्चे को एकदम मैसेज मिल जाता है कि हाँ ये तो सब कहने की बातें हैं। तो यहाँ पर हम अंदर में ये ठान लें कि हम जो कहते हैं वो अपने जीवन में भी रखें, तभी बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। तो इन बातों को हमको नजरअंदाज नहीं करना है, कथनी और करनी को एक बनाना है। दूसरा क्या होता है कि कई बार टीचर्स घर से भागते भागते जाते हैं घर का काम करके, और हड़बड़ाते हुए और जाकर के क्लास लेने शुरू कर देते हैं। उस समय जो उनके डिस्टर्ब वाइब्रेशंस हैं वो बच्चों को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर टीचर्स को क्या करना है, अपने मन को स्थिर रख करके ब्रेकफास्ट बनाना है। मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट बनाएं तो कोई ना कोई मंत्रास अपने माइंड में रखें, या कोई ना कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग आप चला करके रखें। आप देखेंगे आपका उससे भी कम समय में ब्रेकफास्ट बन जाएगा। हम ज्यादा वेस्ट एनर्जी करते हैं वेस्ट थॉट्स में, लेकिन जब टू द पॉइंट आप काम करेंगे तो उसमें आपको कोई घबराहट नहीं होगी और आप बिफोर टाइम जो है अपना काम कर लेंगे। तो इस प्रकार मेडिटेशन करके, प्रेयर करके, चैंटिंग ऑफ मंत्रास के द्वारा ब्रेकफास्ट बनाते हुए या हर कर्म करते हुए हम अपनी मन की स्थिति को स्टेबल रखें, ताकि हम जब स्टूडेंट्स के सामने जाएं तो स्टूडेंट्स के मन में पॉजिटिव एनर्जी जाए। आप स्वयं अनुभव करना ऐसा डिफरेंस। जिस दिन आप स्टेबल मन से प्यार से बच्चों के साथ मिल रहे हैं और जिस दिन आप परेशानी से घर से जाकर के बच्चों से मिल रहे हैं, तो उसमें रात दिन का अंतर होता है। तो हम अपने मन को स्टेबल करके तब बच्चों के साथ पढ़ाने बैठे, नहीं तो हम स्टूडेंट्स के साथ जास्ती कर रहे हैं। और हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स के साथ हमको अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारी बात को नहीं सुनते हैं। क्लास में टीचर पढ़ा रही है, पीछे बच्चे जो हैं बातचीत कर रहे हैं। ऐसे समय पर टीचर का बड़ा हॉरिबल सिचुएशन हो जाती है कि मैं इतने प्यार से पढ़ा भी रही हूँ लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार टीचर्स स्टूडेंट को रिस्पेक्ट नहीं देती हैं। घर से जब परेशानियों से जाती हैं तो किसी भी जो डल स्टूडेंट होता है उसको डांट देती हैं। इंटेलिजेंट की प्रेज करेंगी लेकिन डल को डांट देंगी। तो उससे क्या होता है, ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर वो परमानेंट इंप्रेशन उस टीचर का बैठ जाता है
और वह इंप्रेशन निकलता नहीं है, तो वह टीचर के प्रति ऐसी ही डिसरिस्पेक्ट रखता है कि वो क्लास में पढ़ाएंगी तो कुछ ना कुछ जो है ऐसी डिस्टरबेंस क्लास में वो करता रहेगा, सबकी में नहीं करेगा, केवल उसी में करेगा। तो बच्चों से रिस्पेक्ट लेने के लिए क्लास में जो है पीसफुली बच्चे पढ़ें, इसके लिए हमें बच्चों को रिस्पेक्ट देनी होगी। ये फार्मूला हमें सबके लिए रखना होगा। ये नहीं इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तो हम प्रशंसा करते रहें और जो थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी है तो हम उसको डांट दें, उसके लिए भी हमें वही फार्मूला रखना है। उसके लिए हमें प्रेम की एनर्जी देनी है, उसको पूछना है अलग से बुला करके, उसकी परेशानियों को हमें समझना है और उसका सॉल्यूशन करना है। तो आप देखेंगे आगे से वो स्टूडेंट जो है आपके साथ ठीक से पेश आएगा और आपको रिस्पेक्ट देगा और आपकी बात को सुनेगा। नेक्स्ट बात, हम टीचर्स चाहते हैं कि बच्चे हमको अच्छी निगाहों से देखें, परंतु आज आप देखते हैं कि जमाना ऑनलाइन का है, इंटरनेट का जमाना है और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी बैठते हैं। टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि टीचर पढ़ाए तो कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो पेरेंट्स देख लें और वो मुझको सुनने में मिल जाए कि आपकी ऐसी टीचर पढ़ाती हैं, हमारे बच्चे को यही प्रोसेस से पढ़ाती हैं। तो आज वो एक स्ट्रेस भी टीचर्स के माइंड पर है। तो हम टीचर्स को क्या करना होगा, हमें राइट इंफॉर्मेशन देनी होगी और जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें पूरी कमांड होनी चाहिए, पूरी सब्जेक्ट पर कमांड हो, ताकि बच्चा अगर उसको कहीं से टैली भी करता है तो वो कॉन्सेप्ट जो है उसे लगे कि मेरी टीचर ने बिल्कुल राइट सिखाया है। इससे बच्चे की आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आपको वो चाहने लगेगा और आपकी क्लास को वो कभी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट बात हम और देखते हैं, कई बार अक्सर क्या होता है कि बच्चे, कई टॉपिक ऐसे होते हैं बोरिंग होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बोरियत महसूस होती है, तो ऐसे समय पर क्या करें, बीच बीच में बच्चों को थोड़ा हंसाएं और इतना भी ना हंसाएं कि दूसरी क्लास तक उसका शोर जाए, ताकि दूसरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ऐसे अपना हम उस का एंजॉयमेंट क्लासरूम का रखें। तो बच्चों को कोई ऐसी चीज में हम हंसने के लिए कोई ऐसी गपशप की बात हम बीच में कर दें जिससे बच्चे थोड़ा सा हल्के हो जाएं, तो वो लेसन जो है फिर आगे के लिए सुनने के लिए रेडी रहेंगे। नहीं तो कई बार बोरियत होती है तो बच्चे जो है फिर अनमने मन से सुनते हैं और वो लेसन आगे खिंचता नहीं है। तो इस प्रकार की बात का भी हम ध्यान रखें। और साथ साथ कई बार क्या होता है कि टीचर्स अपनी ही तारीफ करते हैं, बच्चों के सामने अपनी प्रशंसा के पुल बांधते रहेंगे, लेकिन ऐसा करना भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि बच्चे अपने आप से आपके व्यवहार से जान जाते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट बात, आप ध्यान रखें कि जो बच्चा पढ़ाई में एकेडमिक फील्ड में अच्छा नहीं है तो आप उसको नकारे नहीं। हो सकता है वह स्टूडेंट म्यूजिक में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में बहुत टैलेंटेड है, तो आप उस स्टूडेंट को उसी ऊंची निगाह से देखें, आप उसको उतना ही क्लास में महत्व दें, तो हो सकता है वो एडिसन के समान कोई अच्छा नेम एंड फेम का लीडर बन सकता है। नेक्स्ट, आप ध्यान रखें कि बच्चों को बार बार यही बताएं कि आपको लीड करना है। आप अगर इंडस्ट्री में हैं तो आपको वहां पर जीएम, डायरेक्टर जो भी बनना है, तो उसके लिए एक अच्छा डायरेक्टर, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो आपकी लाइफ में हो। तो इस प्रकार से जब उनको आप लीड करने के लिए कहेंगे तो वो इस राष्ट्र के एक अच्छे लीडर बन जाएंगे। तो इन बातों को हम टीचर्स ध्यान में रखें और साथ साथ हम बच्चों के लिए प्रेजेंट सिनेरियो में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम देखें कि पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाते हैं चार दीवारी के अंदर, तो ऑनलाइन एजुकेशन को वो कई बार अवॉइड करने लगते हैं
और जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी ही स्ट्रेंथ मिलती है, तो वहां पर भी डिस्करेज होकर के वो आ जाते हैं। तो उनके मन में बड़ी अनसर्टेनिटी है। ऐसे समय पर बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर, आप सभी उनको बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन है, जो गुरु द्रोणाचार्य से शिष्य एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख करके घर में ही उनका चित्र रख करके पढ़ी, और वो इतनी पारंगत उस धनुर्विद्या के अंदर शिक्षा पा करके हो गए थे। तो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हम इस बात पर जो है लाएं कि ऑनलाइन विद्या, ऑनलाइन एजुकेशन कोई कम नहीं है, और साथ साथ स्टूडेंट्स को हम इन बातों पर भी ध्यान दिलाएं कि ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि घर में रहते हैं, बाहर निकलने का ज्यादा नहीं हो पाता है, तो इससे जो है उनका हेल्थ के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स को आप मेडिटेशन करने के लिए अवश्य कहें। वो तभी हो सकेगा जब हम करेंगे और हमें उसकी वैल्यू होगी। फोर्थ, उनको एक्सरसाइज, और फिफ्थ पॉइंट, बच्चों को हम कोई ना कोई हैबिट डेवलप करने के लिए कहें। ऑनलाइन बहुत सारी हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से पेश आए और बच्चों को भी हम बहुत अच्छे से हैंडल करें। और आपको बताते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने आफ्टर रिटायरमेंट, इससे पहले तो मैं होम साइंस लेक्चरर रही दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, और आफ्टर रिटायरमेंट की बात बाद में बताऊंगी। इससे पहले की बात अब मैं बता रही हूँ कि जब मैं स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था, तो उस समय हमारी जो प्रिंसिपल थी, उनका ब्रह्मा कुमारीज के लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैंने यही मन में ठाना हुआ था, ये क्या बात है, ये क्यों इंप्रेशन अच्छा नहीं है। तो मेरा जो व्यवहार उन्होंने देखा अल्टीमेटली, और व्यवहार और वर्क आउटपुट जो देखा, तो उन्होंने मुझको यही कहा कि आप तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अन्नपूर्णा देवी है, क्योंकि मेरा होम साइंस विषय था। तो कहने का भाव है कि आपका व्यवहार ही दूसरों को सिखाता है और आपका व्यवहार ही दूसरों पर गलत प्रभाव डालता है। तो हम अपने व्यवहार से दूसरों को सिखाएं। तो आफ्टर रिटायरमेंट, जो मैंने 2018 में रिटायरमेंट लिया, तो मैंने भगवान को यही कहा कि भगवान, आपने हमको इतना सुंदर बना दिया, अब मुझे लगता है कि इतना जो प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर सुसाइड कर रहे हैं यूथ, बच्चों के अंदर इतनी गलत हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, इंसोम्निया, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और रात रात वो जागते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए थॉट लेबोरेटरी बनाने का कॉन्सेप्ट माइंड में आया, और इसका डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि समय की सीमा को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, और जो प्रॉब्लम्स बीच में आई, उन प्रॉब्लम्स को भी हटाने में भगवान का मुझे सपोर्ट मिला। और आज नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसका ऑनलाइन क्लासेस का बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं, और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जिसका एक्सपीरियंस हम मेडिटेशन के बाद में सुनेंगे, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। तो इस प्रकार से आज ये लेबोरेटरी, ये शिक्षा जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कारगर सिद्ध हो रही है। तो ऐसा ईश्वरीय ज्ञान जो सुप्रीम भगवान, सुप्रीम टीचर आकर के इस समय दे रहे हैं, हम सभी शिक्षकों को उस शिक्षक से सदमति मिल रही है। तभी सभी ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि कर देना। तो वो ये समय चल रहा है जो हम सभी शिक्षकों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स, टिप्स और रास्ते बता रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको आज तो हम इतना नहीं दे पाए हैं, लेकिन आगे हम आपसे मिलते रहेंगे। अभी हम मेडिटेशन करते हैं। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। कॉन्फिडेंस डेवलप तभी होगा सिचुएशंस को टैकल करने का, जब वो अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानेंगे। जब तक एक बच्चा अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं पहचानता है, तब तक वो असमंजस में रहता है, क्या करूं, कैसे करूं। जब उसे मालूम पड़ता है मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं बहुत
पावरफुल हूं, ये बात तो कुछ भी नहीं है। ये सिचुएशन क्या है? इस सिचुएशन को तो सोच सोच करके मैंने बहुत बड़ा कर दिया है और मैं अंदर से खाली हो गया हूं। तो ये मेडिटेशन हमें यही सिखाता है कि आपको अपने अंदर जाना है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपके अंदर सब कुछ है। तो आइए चलते हैं ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पर। इसके लिए कुछ एक नियम मैं आपको बताती हूँ मेडिटेशन के लिए। इसमें आप कंफर्टेबली बैठ जाएं, कोई स्ट्रेस ना रखें अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर। अगर स्ट्रेस रखेंगे तो आपका ध्यान वहां पर रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी। सेकंड जो लॉ है मेडिटेशन का, कि आपको जो अफर्मेशन पॉजिटिव हम आपको देंगे, उन पॉजिटिव अफर्मेशन को आप बुद्धि के द्वारा देखें, आंखों से नहीं, अंदर से आप उसको समझें, देखें, विजुअलाइज करें। अगर आप विजुअलाइज नहीं करेंगे तो आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। आपको कहेंगे कि आप सत्य स्वरूप हैं, लेकिन आप केमिस्ट की दुकान पर शॉपिंग सेंटर में जाकर बैठ जाएंगे। फिर लास्ट में कहेंगे हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया, हमें तो कुछ फील ही नहीं हुआ। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। ये तो एजुकेशन में भी हमें सिखाया जाता है, कंसंट्रेशन। तो मेडिटेशन में भी जो पॉजिटिव अफर्मेशन हम आपको देंगे, उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को आप फोकस करेंगे। आपको बोलना नहीं है, केवल सुनना है। आईज आप ओपन करके सामने देखते हुए भगवान के साइन की तरफ भी देख सकते हैं, और जो सामने मेडिटेशन करा रहा है वहां पर भी देख करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आइए चलते हैं। अपने मन को जहां पर तिलक लगाते हैं वहां पर ले आइए। यहाँ पर एक मैं ज्योति स्वरूप चेतना आत्मा निवास करती हूँ। करें मस्तिष्क के बीच में जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस में, वहां पर मैं आत्मा वास करती हूँ। मैं एक प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ। मैं ये आंखें नहीं हूँ, इन आंखों से देखने वाली मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बहुत बड़े बड़े कार्य इस सृष्टि पर कर रही हूँ। घर की मैनेजमेंट, ऑफिस की मैनेजमेंट, फैमिली रिलेशंस को निभाना, पूरा दिन मैं कितनी प्लानिंग करती हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। महसूस करें मैं एक पावरफुल सोल, चैतन्य शक्ति हूँ।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कोई भी नकारात्मक शक्ति अब नहीं हरा सकती। मैं हर सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर सकूंगी। अब मैं इस शरीर से अपने को ऊपर बुद्धि के द्वारा उठा हुआ महसूस कर रही हूँ और सन, मून और स्काई से ऊपर ब्रह्मलोक में जहां सिक्स्थ एलिमेंट है वहां सुप्रीम टीचर भगवान से मैं अपने को कनेक्ट हुआ देख रही हूँ। मेरे अंदर सभी पावर्स इस कनेक्शन के थ्रू आती जा रही हैं। अब मैं वापिस इसी सृष्टि में लौट कर आ रही हूँ विचारों के माध्यम से। अब मैं इस सृष्टि में वापिस अपने घर में आ गई हूँ। अब अपने सामने अपने फैमिली मेंबर्स को जो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं उनको इमर्ज करिए और उनको प्यार की दृष्टि से देखिए। प्रेम की शक्तिशाली दृष्टि उनको दीजिए। धीरे धीरे ऐसा आभास होता जा रहा है जैसे कि वह मेरे अपने हैं और मेरे बहुत करीब हैं और हम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिस्टर विमल, सॉरी सिस्टर सुदेश। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें कराया और अपने थॉट लैब की भी बात की कि किस तरह से बच्चों की थॉट्स को वो चेंज करती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही एक्सपीरियंस एक बच्ची का जिसने रेगुलरली थॉट लैब की क्लासेस ली हैं and the changes that she feels in herself. Om Shanti. My name is Mahima Munjal and I'm a final year computer science student at the North Cap University. I have currently enrolled myself in the course Innovative Thinking and Positivity in the current semester, and I can tell you that this is the best decision I have took in my entire college journey. Like this happiness, this external happiness I have got is inner. It is not dependent on any external factors, and I can't thank my instructors enough for this. Meditation has given me a lot of perspective, and it has given me a lot of harmony, and it has given me a lot of integrity. I feel that my innocence has gained back, and that innocence is like worthy of any praise, or like I can't just explain it in words. Like I am like so elated with this happiness that during this few minutes of meditation I feel connected to God. I feel as if there is nothing in this world which can't go wrong. I feel as if whatever it is, it will eventually be okay. I feel as if
even if I'm not facing a good time right now, everything will be okay. I feel as if my childhood self has returned to me, my innocence has returned to me, and my happiness has returned to me. I'm also working in a company. I face a lot of stress, I face a lot of tension, but that tension goes away in minutes when I meditate. Otherwise, like, I'm thinking all day like how I will do this, how I will not do this. But now, whenever I meditate, I just think of solutions in a calmer way, and the solutions automatically come to my head. And like, even my mentor has noticed changes in me. Like, he has noticed positive changes in me. He told me that now you are bringing a lot to the table. Tells me that now I think you are slowly and steadily learning to work in Nagaro. Earlier I was like so stressed that how I would complete this project on deadline. But now I feel that now, like, what I can say, therav. There's a Hindi word therav and peace which has come to my life. Now stability has come to my life through this course and through this meditation. I can't thank enough Major General Om Prakash sir and Sister Sudesh and Sister Archana for giving me the golden opportunity to study this course. Like, really, thanks a lot. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया छोटी सी बच्ची ने एंड दैट इज द डिफरेंस जो कि मेडिटेशन सबकी लाइफ में ला रहा है. अभी हम चलते हैं सिस्टर अर्चना के पास हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम गुड़गांव. आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं